Okay guys, in today's session we discuss some problem which is based on a relative motion, and the section is what? Minimum distance problem. Up to this lecture we discussed a number of types of problem based on relative motion, but this one is a quite different one, and this concept we understand by the using of directly problem. So let's we start the first problem based on this one, minimum distance problem. Right now this is a one dimensional problem. Okay, so write down it is a one dimensional. We also discuss about this type of problem in a two dimension. The two car A and B both are moving as shown in figure. मतलब car A है, car B है. Thus car A moving with a 20 meter per second and B is moving with a 10 meter per second. Okay. If the retardation of 1 meter per second square is given to the car A, retardation means what? Acceleration opposite to the velocity. तो velocity इस डायरेक्शन में, इसको retardation दे दो, तो A is equal to 1 meter per second square. Then find the minimum distance between the two cars. Find the minimum distance between the two cars. Actually this A is moving with the higher velocity, B is moving with the lower velocity. Now due to this acceleration, opposite acceleration, retardation, this speed of car A is decreases continuously. So this condition is like this. Suppose once a car B and car A is moving and car B is also moving. So both are moving. After some time this car A is coming to rest. Okay, but B is continuously moving with the same speed. Why this car is coming to rest? Because of this retardation. Okay, so situation is like this. See, so at this time this distance between them is what? Minimum. At this time, then after A is at rest but B is moving. Okay, so then after again distance is increases. So we have to find this distance when both this car are at a minimum distance. Okay, and second one, at what time the distance is minimum between this. So we have to finding out the time also. At what time this distance is minimum. So actually the condition is what? Both the car are moving in this direction, and the car B is reached somewhere here and car A is reached somewhere here, and this distance is minimum. This distance is what? Minimum actually. So this one is actual condition. Okay, but ऐसे तो हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि पता ही नहीं है कहाँ पे वो मिनिमम होने वाला है, कब मिनिमम होने वाला है. तो इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व नहीं करना है. सो यूज द रिलेटिव कंसेप्ट फॉर वी गेटिंग दिस आंसर. ओके, वेरी सिंपल. यू जस्ट गिव्स रेफरेंस फ्रेम टू एनी वन ऑफ दिस कार, एनी वन ऑफ दिस, मे बी ए, मे बी बी. सो लेट्स वी चूज द कार बी इज at rest. So this one is reference frame. So car B is comes to rest. इसको rest पे लेके आए. Okay, now the velocity of car B is given to the car A in opposite direction. Right now it is right hand side. So give this velocity to this car in opposite direction. So VB is equal to 10 meter per second. So what is the relative velocity? Okay, velocity of A with respect to B, V relative is equal to VAB. Okay, राइट हैंड साइड 20 है, लेफ्ट हैंड साइड 10 है, तो राइट हैंड साइड को पॉजिटिव बोलो, लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव बोलो. 20 minus 10. ओके, फॉर दिस कंसिडर दिस डायरेक्शन इज अ पॉजिटिव. ये डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान के चलो. ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो 20 minus 10 कितनी हो गई? 10 meter per second. So this one is a relative velocity. Now B is at rest. अभी तो बी कैसे रेस्ट पे, तो कार ए ही मूव कर रहे, तो कार ऐसा मान के चलो कि कार ए मूव करते करते कहीं पे यहाँ पे पहुंच गई, कि पता नहीं कोई भी जगह ले लो, कार ए जो है वो यहाँ पे पहुंच गई. ठीक है, उसके बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0, क्योंकि जब वेलोसिटी 0 होगी वही डिस्टेंस मिनिमम रहेगा. जब भी कार ए की वेलोसिटी 0 होगी तब डिस्टेंस कितना हो जाएगा? मिनिमम. ठीक है, क्योंकि यहाँ से आगे जाने वाली तो ए डिस्टेंस मिनिमम हुआ. ए डिस्टेंस कितना हुआ? X minimum. So we have to get this answer, X minimum. Okay, so when this car is moving in a relative case, so you just, that's the constant accelerating motion. This motion is what? Constant accelerating motion. So you write down the given data. Okay, consider this one is a 0 0. This motion starts from the 0 0 और इसको आप x मान के चलो, ये कितना है? x. उसके बाद हम फाइंड कर सकते हैं x minimum is equal to 100 minus x. ठीक है, सो लेट्स राइट डाउन ऑल दिस डेटा वी हैव टू गिवन हियर. x0 is equal to 0,
x0 इज इक्वल टू 0, x फाइंड करना है, सो x is equal to finding out what is initial relative velocity. Initial relative velocity is a 10 meter per second, so v naught relative is equal to 10 meter per second. What is acceleration? Actually 1 meter per second, but you see the direction, it's a 1 meter per second square. Direction is opposite. See, velocity यहाँ पे, acceleration यहाँ पे, तो फिर as per the direction use the negative sign. So a is equal to -1 meter per second square, and final velocity कितनी हो जाएगी? 0. So final velocity हो गई 0. जब भी इसकी velocity 0 होगी वही distance minimum होगा. When this velocity of this one is become 0, this one is becomes a minimum distance. Okay. So v is equal to what? 0. You just think one equation in which this all those data are present. You just consider one equation. So which one? See, we use this one, x minus x naught is equal to v square minus v0 square upon 2a. इक्वेशन में ऐसा ही है कुछ, लेकिन यहाँ पे रिलेटिव काउंट करना है, ठीक है. तो x फाइंड करना है, x0 0 हो जाएगा, तो 0, v भी 0 है तो v भी 0 रख दो, माइनस v0 स्क्वायर 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, so that is 10 square upon 2. Acceleration is -1, so that's a -1. So what is x actually? So x is equal to 10 square 100, and minus minus cancel 2, so 100 by 2 is what? 50 meter. So this one is actually x, but what you have to want? Minimum distance. So x minimum is equal to 100 minus x हो जाएगा ना, 100 minus x. So minimum distance between two car, minimum distance between two cars, x minimum is equal to 100 minus x. तो x कितना है? 50, so 100 minus 50 रख दो, तो x minimum is equal to what? 50 meter, and this is our answer. Means this both this car actually moving, ऐसी कंडीशन हमने एजम की है, एक्चुअल कंडीशन है, मतलब जब भी कार ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, कार भी यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, तो उसका बीच का डिस्टेंस कैसा हो जाएगा? मिनिमम. और यहाँ पे कार बी जो है वो आगे जाएगी, कार ए रेस पे होगी, कार ए कैसे हो जाएगी? रेस पे. तो जब भी आपको मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, यू जस्ट कंसिडर द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट, मीन्स दिस फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज 0. आपको क्या काउंट करना है? वेलोसिटी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स इज 0. इसकी वेलोसिटी जहाँ पे 0 होगी उसका डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा, बट ये रेस पे होनी चाहिए. Okay, means you just using the relative concept, you just take a one car as a reference frame and find this when this velocity of this car is becomes 0. That's a minimum time, that's a minimum distance, and how much time is required? So that second question, at what time this distance becomes minimum? Use the same theory, but we have to find out the time. So मान लो कि इसको यहाँ पे पहुँचने में कितना टाइम लगता है? T. So we have to find it. So v is equal to 0. v0 relative is equal to 10 meter per second. यहाँ पे sorry relative यहाँ पे 10 meter per second. Acceleration -1. So acceleration -1 meter per second square, and time is equal to find out. One another equation in which this all those data are present. So v is equal to v0 प्लस 80. v कितना हो गया? 0. सो रख दो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू v0 10 प्लस a -1, सो -1 इंटू t. ठीक है, तो 10 एंड दिस -3 कम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स पॉजिटिव, सो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड. ओके, आप ये भी फाइंड कर सकते हो कहाँ पे डिस्टेंस मिनिमम होने वाला है. If you want to finding out this distance, where this distance is becomes minimum, means when the distance is minimum, what is the position of car A and car B? आप ये भी फाइंड कर सकते हो, तो फिर x A and x B फाइंड कर लो. इसको क्या बोलना है? x A. यहाँ से यहाँ तक x A, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक x B. कैसे फाइंड कर सकते हो आप? x A is equal to VAT plus 1/2 AT स्क्वायर एंड एक्स बी फाइंड नहीं करना है, लेकिन एडिशनल है, एक्स बी इज इक्वल टू वी बी इंटू टी. ठीक है, आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो. फिर से बोल रहा हूँ, अगर एक्स ए फाइंड करना है तो वी ए टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर और एक्स बी इज इक्वल टू वी बी इंटू टी. टी कितना रखना है? 10 मीटर पर सेकेंड. सो एक्स ए कौन सा डिस्टेंस है? यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, और एक्स बी कौन सा डिस्टेंस है? यहाँ से लेके यहाँ तक का.
तो आप इससे भी पोजीशन भी फाइंड कर सकते हो, व्हेन द डिस्टेंस इज मिनिमम। ओके, व्हेन डिस्टेंस इज मिनिमम पोजीशन ऑफ ए एंड बी। चलो ए एडिशनल नोट में लिख दो, अभी पूछा नहीं लेकिन आप फाइंड कर सकते हो। ओके, सो यू जस्ट नोट डाउन दिस फुल एग्जाम्पल इन योर बुक्स प्रॉपर्ली। Okay, comes to the second problem. Find the minimum distance between the objects A and object B. Object A and B. ठीक है, ऐसा कुछ फाइंड करना है हमें, ऑब्जेक्ट ए एंड बी का मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना। नाउ ऑब्जेक्ट ए इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट बी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे 2 डायमेंशन प्रॉब्लम। सो राइट डाउन दैट्स अ मिनिमम डिस्टेंस प्रॉब्लम इन अ 2 डायमेंशन। सो सी, question is actually like this. When this you consider this both the objects, this both objects are moving like this, so you don't know when this distance is minimum. Okay, so actually this A is reached somewhere here, B is reached somewhere here, and the distance is maybe minimum, but we are not getting this answer easily. Okay, because this distance is minimum maybe, then we don't know at what time this distance is minimum, otherwise we find it. Okay, so we again use the relative concept. अगर ये बी रेस पे हो गया तो फिर मिनिमम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, और या फिर ये भी रेस पे हो सकता है, बी या ए दोनों में से कोई एक को रेस पे ले लो तो फिर मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना इजी रहेगा। ठीक है, एक्चुअल तो ऐसी कंडीशन होगी। देखो एक्चुअल कैसा होगा, व्हेन दिस ए इज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन, दिस बी इज मूविंग अलोंग लाइक दिस, सी, सो व्हेन दिस बोथ आर रीच समवेयर हियर, द डिस्टेंस बिटवीन दिस इज 2 ऑब्जेक्ट्स इज मिनिमम, दिस वन actually, but it is quite difficult to find out. Okay, so what we are doing actually here, we just taking any one of these objects is at rest, मतलब आप किसी को भी एक ऑब्जेक्ट्स को रेस पे ले लो, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया, किसी को भी, ए बी या ए और बी को, चलो किसी को लेके चलते हैं। सो लेट्स टेक दिस, सपोज बी इज एट रेस्ट, रेफरेंस फ्रेम, बी को आपने क्या किया, रेस पे ले लिया। ठीक है, तो ओ हो गया आप रेस पर, तो उसकी वेलोसिटी किसको देनी है, आप यहाँ पे ए को ले लो, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए। ठीक है, चलो मान लो कि रेफरेंस में यहाँ पे जगह नहीं इसलिए ए को ले रहे। ठीक है, बी को भी ले सकते हो, आंसर तो सेम ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दैट इज एट रेस्ट। ओके, so what is the velocity of a right now, 10 meter per second in this direction, so the same velocity is given to the objects B in opposite direction। अब भी ऐसे है तो इसको कौन सी डायरेक्शन में देनी है, इस डायरेक्शन में ऐसे देनी है, तो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ A is at rest, अभी ये कैसा है, रेस पे, तो B के पास 2 वेलोसिटी है, 10 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन, 10 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन। सो व्हाट इज द नेट वेलोसिटी ऑफ B, तो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी होगी। ठीक है ना, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, तो रिजल्टेंट कहाँ पे होगा, इसके बीच में यहाँ पे कहीं पे होगा, पता नहीं है कितना, लेकिन मान लो कि वी रिलेटिव है। नाउ दिस बोथ दिस वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों वेलोसिटी कैसी है, परपेंडिकुलर है, तो फिर रिलेटिव मतलब नेट वेलोसिटी कैसे, वी रिलेटिव मींस व्हाट हियर, वी नेट। तो नेट स्पीड कैसे फाइंड करनी है, एक इस तरफ एक इस तरफ, दोनों का एंगल कितना है, 90 डिग्री, यूजिंग द वेक्टर रूल। इफ 2 वेक्टर आर एट अ 90 डिग्री, देन व्हाट इज द रिजल्टेंट, सो रिजल्टेंट और नेट स्पीड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यहाँ पे एक और एस पे लिया ना, बी की स्पीड फाइंड करते हैं, किसकी रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, तो रिजल्टेंट और नेट स्पीड विथ ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, दोनों 90 डिग्री पे है, तो वी नेट कितनी हो जाएगी, अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। क्यों, 90 डिग्री पे है। एक्चुअली रिजल्टेंट क्या है, देखो व्हाट इज एक्चुअल रिजल्टेंट, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यू जस्ट रिमेंबर दिस रिलेशन, अगर 90 डिग्री एंगल है तो cos 90 कितना होगा, 0, तो ये टर्म हो गया 0, तो इतना ही बाकी रहा, यहाँ से स्क्वायर निकाल दो, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही किया ना, r की जगह पे वी नेट लिखा है, तो वी नेट, ए की जगह पे वी है तो वी है, बी की जगह पे वी भी है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कैसे फाइंड कर सकते हैं, चलो तो वैल्यू रख के फाइंड करो, कितना हो जाएगा, सो वी नेट इज इक्वल टू अंडर 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर,
सो 100 प्लस 100, इसका रूट निकाल दो। सो वी नेट इज इक्वल टू 10√2 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि बी जो है वो इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में आगे बढ़ने वाला है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस कैसा होगा तो पता ही नहीं है, तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए कुछ एडिशनल नोट देखते हैं। चलो, तो कुछ ऐसी कंडीशन दी हुई है, यहाँ पे बी है वो इस डायरेक्शन में जाने वाला है, ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअली ये है। तो आप काफ़ी सारे डिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो बी की पोजीशन के। ये भी डिस्टेंस ले सकते हो, ये भी डिस्टेंस ले सकते हो, ये भी डिस्टेंस ले सकते हो, ठीक है। काफ़ी सारे आप पोजीशन ड्रॉ कर सकते हो, बी यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे कहीं पे भी। हमें मिनिमम डिस्टेंस ही फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो, मतलब यू जस्ट ड्रॉ द वन लाइन परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ बी, टू द पाथ ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए फ्रॉम द ए इज अ मिनिमम। सी यहाँ पे इसको x1 बोलो, इसको x2 बोलो, इसको x3, तो कौन सा मिनिमम हुआ? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मिनिमम होता है। इन टू डायमेंशन इफ यू ड्रॉइंग द डिफरेंट डिस्टेंस देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज मिनिमम। तो यहाँ पे इस तरह से एक लाइन बनाओ कि जैसे वो परपेंडिकुलर, तो ए बी की पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब ये तो रेस पे आ गया, तो बी कहीं पे भी हो सकता है, आप कहीं पे भी उसको ले सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको मिनिमम के लिए कहाँ लेना पड़ेगा? परपेंडिकुलर पे। आप ऐसी लाइन बनाओ जिससे परपेंडिकुलर लाइन बने, वही मिनिमम होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ए डिस्टेंस और ए डिस्टेंस इससे ज़्यादा होगा। आप कोई भी ड्रॉ करो, चलो ए भी करो, ए भी ज़्यादा होगा। इस यहाँ पे करते हो, ए भी ज़्यादा होगा। मिनिमम तो यही रहेगा, कौन सा? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से बनाओ, चलो। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई, चलो। सो व्हेन दिस बी इज रीच एट दिस पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए, एक्चुअली तो बी यहाँ पे जा रहा है, हाँ, बट विथ रिस्पेक्ट टू ए मान लो कि बी यहाँ पहुँचा, तो ए जो ए है उसको बोल लो, अब एक्स ने डी ले लो, ठीक है, 2 डायमेंशन है तो इसको डी मिनिमम ले लो। और इनिशियल डिस्टेंस इज नॉन, एक्चुअली 100 मीटर ये होना चाहिए। इनिशियल डिस्टेंस आप मान लो कि 100 मीटर है, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है अभी? डी मिनिमम फाइंड करना, डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी, ए फाइंड करना है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो आप इसको थीटा ले लो, ए फाइंड करना है, ए तो नॉन है, इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज व्हाट? 100 मीटर। सो यू जस्ट टेक दिस एंगल इज व्हाट? थीटा। दिस एंगल इज व्हाट? थीटा। अगर एंगल थीटा है तो tan थीटा फाइंड करो। आप ट्राइंगल बनाओ, ये ट्राइंगल यहाँ पे, तो दोनों वेलोसिटी ऐसे है, देखो थीटा फाइंड करना है, ठीक है। सो यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी है? VA। यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी है? VB। यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी है? V नेट। एंगल कितना लिया है? थीटा। सो tan थीटा इसमें यूज करो। सो tan थीटा इज इक्वल टू अपोनेंट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोनेंट यहाँ पे कौन सा होगा? VB। एडजेसेंट कौन सा होगा? VA। ओके, सो VB अपॉन VA। ओके, B को यहाँ पे ले लो ऐसे, VB को, तो tan थीटा इज इक्वल टू अपोनेंट अपॉन एडजेसेंट, ऐसा होगा। सो अपोनेंट कौन सा है? VB। एडजेसेंट कौन सा है? VA। तो VB अपॉन VA, दोनों का मैग्नीट्यूड रखो 10 एंड 10। सो 10 अपॉन 10, आंसर इज व्हाट? 1। For what angle tan theta becomes 1? For which angle? For what is the value of theta? So the tan theta becomes 1. So very well known equation, very well known value. That's theta is what? 45 degree. At theta, when theta is 45, tan theta is equal to 1. You go through the trigonometry table. आप टेबल में देखना तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 45। मतलब कि ये 45 पे जाने वाला है। तो आप इस ट्राइंगल का यूज करो, ए बी, और आप इस पॉइंट को, कोई एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स भी है लेकिन पॉइंट्स आप मान लो कि पी है, ठीक है। तो आप इस ट्राइंगल का यूज करके डी मिनिमम फाइंड कर सकते हो। अभी थीटा इज अ नॉन वैल्यू, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ए पी बी, इस ट्राइंगल में आप यूज करो, चलो। तो this one is the opposite side, this one is the opponent side, this one is the hypotenuse. So opponent and hypotenuse, sin theta. So sin theta is equal to AP upon
AB. So what is AP actually? AP is a D minimum. So D minimum is equal to AB या इसमें से, ठीक है, AP. So AB into sin थीटा. So AB into sin थीटा. AP is equal to क्या रख देना है? D minimum रखना है. तो D minimum is equal to, यहाँ से इसमें यहाँ ले लो, AB sin थीटा. What is AB actually? 100 मीटर. So D minimum is equal to 100 मीटर इंटू एंगल कितना मिला? 45 साइन 45. देखो आंसर कितना हो गया डी मिनिमम का. सो साइन 45 1/√2, साइन 45 1/√2. सो 100/√2 मीटर. ओके, आप √2 कैंसिल करोगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 50√2 मीटर. दोनों ही सही है, ठीक है. 100/√2 भी सही है और 50√2 भी सही है. दोनों आंसर करेक्ट है. तो पहला आंसर तो मिल गया, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. तो आप इस तरह से, मतलब 2 डायमेंशन में जब भी मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है. जो भी रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है. कितना टाइम लगता है वो भी फाइंड कर सकते हो यहाँ पे. हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस मिनिमम डिस्टेंस. सो दैट इज एडिशनल क्वेश्चन. एक्चुअली यहाँ पे पूछा नहीं है लेकिन एडिशनल लिख देते हैं. At what time distance between A and B is becomes minimum. ठीक है, मतलब कौन सा टाइम पर डिस्टेंस मिनिमम होने वाला है. सो व्हेन दिस B is reach at this point P, when the objects B is reach at the point P, the distance is becomes minimum. क्योंकि यहाँ पे होगा तो भी मिनिमम नहीं होगा, यहाँ पे B है तो भी मिनिमम नहीं होगा. ठीक है, तो मिनिमम कब होने वाला है? जब B जो है वो P पॉइंट से पास पहुंचेगा. सो व्हाट इज अवर आंसर? व्हेन ऑब्जेक्ट B, दैट इज अवर आंसर, ऑब्जेक्ट B reach at point P with respect to A. ये तो लिखना ही है क्योंकि यहाँ पे तो B आ नहीं रहा, B तो एक्चुअली यहाँ पे जा रहा है, लेकिन ये तो रिस्पेक्ट में यहाँ पे आ रहा है. ठीक है, तो when objects B reach at point P with respect to A. Okay, so at this time when the objects B reach at point P with respect to A, distance between A and B is becomes minimum. तो इतना डिस्टेंस कवर किया कि नहीं? देखो इतना डिस्टेंस कवर किया कि नहीं? ये हाइपोटेनियस है तो ए साइड कितनी होगी? PB इज इक्वल टू AB cos 45. एक्चुअली आप ए साइड ट्राइंगल का यूज भी कर सकते हैं, 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है तो AP इज इक्वल टू AB sin 45. Opponent side and adjacent side. Opponent side is a sin and adjacent side is a cos. देखो PB is equal to, what is PB? Sorry, AP. Sorry, AP is what? AB sin 45. AP is equal to AB sin 45. हो गया कि नहीं? तो अब इससे भी इसको सॉल्व कर सकते हो राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करके. तो इस पे डिस्टेंस कैसा हो जाएगा? मिनिमम. तो कितनी वेलोसिटी से यहाँ पे जा रहा है? 10 से या फिर 10√2 से? यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी से ए बी जा रहा है? 10 से जा रहा है कि 10√2 से जा रहा है? सो द सिंपल वन, दिस अलोंग दिस वन वेलोसिटी इज व्हाट? रिलेटिव वेलोसिटी. यहाँ पे नेट वेलोसिटी मिलेगी. ठीक है, तो टाइम t is equal to how much distance is covered? P to B. How much distance is covered? PB. And what is the velocity? V net. So into V net. तो P to B कितना है? P to B AB cos 45 is equal to AB cos 45 upon V net means what? V net means 10√2. So that is a 10√2. Put the all value. AB is equal to 100. Cos 45 is equal to 1/√2 upon 10√2. So 10 0 0 cancel out and √2 into √2 2. 10/2 5. So time is equal to
5 seconds means after 5 seconds both the objects are at a minimum distance. After 5 seconds both the objects are at a minimum distance. What is the meaning of this? See, actually this condition is not happen. Actually this B is here, A is here, so after 5 seconds B is reached somewhere here. This is the position at t is equal to 5 seconds, and A is reached somewhere here. So this is the position of A at t is equal to 5 सेकेंड. तो सही में तो ये डिस्टेंस मिनिमम हुआ, ठीक है. तो ये एक्चुअल कंडीशन है. ये कौन सी कंडीशन है? एक्चुअल कंडीशन है, ए रिलेटिव कंडीशन है, ठीक है. लेकिन आंसर तो सेम ही है. ये जो डी मिनिमम है वही डी मिनिमम ये आएगा. अब फाइंड भी कर लेना अपने आप. कैसे फाइंड करना है? देखो यहाँ ये टोटल 100 है, ये टोटल 100 है. तो 5 सेकेंड में कितना कवर किया? 5 सेकेंड में कितना कवर किया? 50. तो ये कितना बाकी रहा? 50. ठीक है. 5 सेकंड में ये डिस्टेंस कितना हुआ? x इज इक्वल टू v इंटू टी. 10 से जा रहा है तो ये भी कितना हुआ? 50. ऐसे आप अभी आंसर पता है इसलिए सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते. ये तो एडिशनल है आपको समझाने के लिए कि ए डी मिनिमम और ए डी मिनिमम में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही सेम है. ठीक है. चलो फाइंड करते हैं. ए बी 50, ए बी 50, राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करो. तो डी मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर. आंसर क्या हो गया? देखो 50√2 मीटर. और यहाँ पे डी मिनिमम का आंसर देख लो 50√2 मीटर. सेम ही है कि नहीं? देखो यहाँ पे जो आंसर है वही आंसर यहाँ पे है. तो एक्चुअल कंडीशन ए है, लेकिन रिलेटिव में हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. फिर से एक बार बता देता हूँ 2 डायमेंशन में क्या करना है. किसी भी एक ऑब्जेक्ट्स को रेस्ट पे लेके आओ और उसकी वेलोसिटी अब अनंत ऑब्जेक्ट्स को दे दो. तो इसको दे दी तो नेट वेलोसिटी फाइंड कर लो. नेट वेलोसिटी वेक्टर के रूल से फाइंड करनी है. व्हाट इज द रूल ऑफ वेक्टर? r² इज इक्वल टू s² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा. ठीक है. तो वेक्टर के रूल से आप नेट वेलोसिटी यहाँ पे फाइंड करो, जो भी आते हैं इसे रख दो. ठीक है. उसके बाद एंगल फाइंड करो. तो एंगल कैसे फाइंड करना है? दोनों वेलोसिटी का रेशियो लेके एंगल मिल जाएगा. तो अभी 45 है, आता ही ऐसा कंपलसरी नहीं है. ठीक है. लेकिन यहाँ पे 45 आया है. आप अगर वेलोसिटी कोई और होगी तो मे बी ये आंसर भी डिफरेंट हो सकता है. क्लियर है? तो ये मिल गई. उसके बाद क्या करना है आपको? आफ्टर गेटिंग दिस वन यू जस्ट फाइंड दिस डी मिनिमम बाय यूजिंग द ट्राइंगल. सो लाइक दिस यू जस्ट टेकिंग अ साइन थीटा और cos थीटा. सो यू जस्ट गेट दिस आंसर. अब अगर आपको टाइम फाइंड करना है तो फिर ए मेथड यूज करने. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन नेट स्पीड. डिस्टेंस अपॉन नेट स्पीड. तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या है? इतना नहीं, इतना लेना है. तो B से P तक, तो B से P तक ये अपना आंसर. ठीक है. तो 5 सेकेंड ये अपना आंसर हो गया. क्लियर है सबको? और एक्चुअल में ऐसा नहीं होता. एक्चुअल में ऐसा होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरफ मूव करने वाला है. देखो ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, लाइक दिस. डू यू अंडरस्टैंड? ऑब्जेक्ट जो इस तरह से मूव होने वाले, लेकिन रिलेटिव में इस तरह से मूव होंगे. अगर आप ऑब्जेक्ट्स ए से बी को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो फिर मोशन इस तरह से आएगी. तो यही रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट है. और मिनिमम डिस्टेंस आप इस मेथड से फाइंड कर सकते हो. ठीक है. तो आप पहले पूरा एग्जाम्पल अपनी बुक्स में अच्छी तरह से नोट कर लो, उसके बाद आगे चलेंगे. ठीक है.